Good morning, 8th class students. Welcome to your social science class. Myself, Miss Deepti from Dipskara, Korolbag. As we have done the whole syllabus of 8th class, and now onwards, we are going to revise the syllabus for final examination. As per our syllabus booklet, in final terms, we are going to have the chapters from the syllabus we have done in from September to Jan month. So and three more chapters are there, one from geography, one from history, and one from the uh, SPL is there. These will be the part of your examination. So here is the syllabus of your class. The syllabus is September to Jan month syllabus plus Geography Chapter 3 Natural Resources, Natural Vegetation and Wildlife, History Chapter 7 Revolt of 1857, and SPL for Chapter 1 Role of Indian Constitution. These three chapters will also be part of your final examination, as well as the map work from September to Jan month is there, will be the part of your examination. So let's start. In our September month syllabus, we have two chapters, that is one is Geography chapter 6 and SPL chapter 5. We are going to start with the SPL chapter 5, the judiciary and the role of police. Let's start it. Judiciary and the role of police, and these two uh, agencies are relate to our law and order situations in the country. Judiciary protect our rights and try to solve the disputes among the peoples, whereas the the main work of police is to maintain the law and order situation in the country. So we can say these two agencies, this judiciary and the police, are the main agencies who info or who help to maintain the discipline, law and order situation in the country. And if any conflict is there, these judiciary help to resolve that among the people conflict among the people, whether it is or it is in between the two states of the country. So as we know, judiciary is the third organ. First two organs are the executives. Executives are there, then your first of all is legislative, then executives are there. So the legislative make laws, executive implement the laws, and whereas judiciary help give us helps to settle the disputes. Okay, so these are the three organs. So the judiciary is the third organ, which protect the rights and freedom of citizens. It administrates justice and settle disputes in accordance with the law of the constitution. So according to the law written in the constitution, judiciary try to solve the disputes among among anybody. And we have judiciary works in three to four hierarchy is there. The Supreme Court is the most highest court in India, and afterward each state has their own high courts are there. Then high courts is after high court, district courts are there. This is the hierarchy of judiciary system in India. And uh, the court is the highest, Supreme Court is the highest court of the judiciary and has the power to supervise the supervise and control the judicial system of India. तो सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट आता है, देन उसके बाद में हाई कोर्ट आता है, एंड देन उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आते हैं. तो सुप्रीम कोर्ट के पास में सबसे पहली बात है इसकी, ये इसकी सबसे पावरफुल
कोर्ट है, ये कोर्ट बाकी कोर्टों के वर्क्स को देखती है, उसके काम को उनके कामों को करने के तरीके को देखती है और रिकॉर्ड भी बना कर रखती है। इसके अलावा अगर हाई कोर्ट से कोई केस आता है और जो यहाँ पर उसकी अपील की जाती है तो उस अपील्स को सुनती भी है जुडिशरी। सुप्रीम कोर्ट एक तो ये देखती है, उसके अलावा हमारे किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स है, अगर किसी के राइट्स के साथ में गवर्नमेंट का कोई लॉ बनता है और हमको लगता है कि वो हमारे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है तो उसके खिलाफ भी पिटिशंस हम लोग सुप्रीम कोर्ट में दे सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट वो सुनता है। और कई बार तो सुप्रीम कोर्ट खुद ही आगे आकर किसी पॉइंट को लेकर अपना जजमेंट भी देता है अपने सो सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ अ powerful agency of the law. So there are two types of cases are there. One is the civil cases, other is the criminal cases. So civil cases deals with the property and matrimonial issues. Matrimonial cases means divorce case हो गया, dowry cases हो गया. These are known as the civil cases, whereas criminal cases deals with the crimes in the society such as theft, murder, burglary, etc. ठीक है ना। तो दो तरह के ही केस होते हैं, या तो हम इनको दीवानी केस कहते हैं या फिर दीवानी केस, या फिर उनको क्रिमिनल केसेस कहते हैं। सिविल केसेस में जो हम लोग के आम घरों लोगों के बीच में डिस्प्यूट हो जाए, ज़मीन को लेकर हो जाए, चाहे आपकी शादी में डिवोर्स का आ जाता है या फिर किसी के दहेज का केस हो जाए या फिर ह्यूमन मॉल, तो ये सब सिविल केसेस में आते हैं। वेयर एज मर्डर्स क्रिमिनल केसेस जिसमें क्राइम हुआ हो, जिसमें कोई क्राइम हुआ हो उसको हम क्रिमिनल केसेस कहते हैं। अब क्रिमिनल केसेस होने पर भी सबसे पहले जो होता है, जो हमारा एक सिस्टम है, एक तरीका है, सिस्टमेटिक वे से जो काम किया जाता है, तो इसका एक तरीका होता है कि कानून जब जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन है कि भी अगर कोई क्राइम कंडक्ट होता है तो उसका FIR लॉन्च करनी बहुत ज़रूरी है अपने पुलिस स्टेशन में। व्हाट इज़ एन FIR? FIR इज़ द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जब तक हम पुलिस को इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, उनको इन्फॉर्म नहीं करेंगे, तब तक वो कैसे अपनी कार्रवाई करेगी। तो पुलिस अपनी कार्रवाई तभी करेगी जब उनके पास में इंफॉर्मेशन होगी, और वो इंफॉर्मेशन हमको रिटन फॉर्म में देनी पड़ती है। एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर हम रिटन अगर इंफॉर्मेशन FIR लॉन्च करते हैं तो वो रिटन होती है, और उसके बाद वो उसकी एक कॉपी FIR लॉन्च करने के बाद में उसकी एक कॉपी वो जो FIR लॉन्च करने वाला आदमी उसको दिया जाता है, और एक कॉपी पुलिस अपने पास में रखती है। देन उसके बाद में पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है क्राइम के ऊपर कि भी क्राइम किसने किया है, क्यों किया है, इसके पीछे मेन मोटो क्या रहा था, और इसका करने का क्या तरीका था। वो सारा चीज़ें ये पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है। उसके बाद में जब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हो जाती है, देन उसके बाद में आपका जुडिशरी आती है। सो ये प्रोसेस है आपके हमारे एक केस को सॉल्व करने का, एक केस के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे जो सबसे बड़ी चीज़ है, वो हम पढ़ने जो आता है कि मैम क्वेश्चन ये बच्चे कई बार पूछ लेते हैं कि मैम जुडिशरी में मतलब कि पुलिस को कैसे पता लगता है, पुलिस क्राइम के बारे में हमको होता है, लेकिन पुलिस को इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद वो सज़ा पुलिस सज़ा दे सकती है कि नहीं दे सकती है। तो बच्चा मैं आपको सीधी सी बात बताऊंगी, पुलिस क्राइम करने वाले को सज़ा नहीं दे सकती है। ही कैन नॉट पनिश एनीबडी। पुलिस के हाथ में पनिशमेंट नाम की पनिशमेंट नहीं दे सकती है। पुलिस उसको फाइन कर सकती है, उसको फाइन कर सकती है, लेकिन उसको पनिशमेंट नहीं दे सकती है किसी को भी। अगर ऐसा पुलिस करती है इट इज़ आउट ऑफ लॉ, और ऐसे में पुलिस को भी आंसर देना पड़ता है। तो बच्चा क्लियर है, पुलिस पनिशमेंट किसी को नहीं दे सकती है। जैसे कोर्ट जजमेंट देता है, पनिशमेंट भी दे सकता है,
वैसा पुलिस नहीं कर सकती है। उसके बाद में एक चीज़ और आती है कि जब हम लोग एफआईआर लॉन्च कराते हैं, उसके क्राइम के बारे में इंफॉर्मेशन पुलिस को देते हैं, पुलिस सर्व करती है, पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करती है, एंड देन उसके बाद में जो जिसने क्राइम किया होता है उसको अरेस्ट करके उसको वो पुलिस कोर्ट के आगे पेश करना होता है। ये यहाँ तक पुलिस का काम होता है। उसके आगे कोर्ट फिर सुनवाई करती है, जो आगे सबूत पेश किए जाते हैं उन सबूतों को देखते हुए फिर आगे जजमेंट कोर्ट देती है। तो ये हमारा लॉ का सिस्टम है इंडिया में। तो हम इन नेक्स्ट लेक्चर हम पढ़ेंगे कि भी सुप्रीम कोर्ट के क्या काम है, हाई कोर्ट के क्या काम है, एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स कैसे काम करते हैं, और बाकी चीज़ों के बारे में जो जुडिशरी में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। सो टिल देन टेक केयर, stay home, stay healthy, and hopefully we are going to see you soon.